अस्सलाम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन और हज़रात, प्रोग्राम हस्बे हाल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अली मुमताज़। नाज़रीन, आइए फिल्म स्टूडियो चलते हैं और देखते हैं कि वहां पर क्या हो रहा है। पीछे हो जा, मैं कहना पीछे हो खलो मेरे को। आप यहाँ से तो उठ जाए ना, उधर जाके बैठे, डायरेक्टर साहब आने वाले हैं। उते आ जा बे डायरेक्टर ने जेड़ी क़यामत लियाउणी है लै वे इत्थे। हम पे क्यों गुस्सा कर रहे हैं, हम तो आपको जानते भी नहीं है। ओनू जाके पूछो जेड़ा खिल रहा बैठा है कि कौन है मैं। अंसारी साहब कौन है ये, बताएं तो सही। ਉਹ ਮਿੱਠੂ ਇਹ ਮੇਰੀ ਫਿਲਮ ਦਾ ਪਾਰਟਨਰ ਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਸਿਰਫ ਪੈਸਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਣਾ। ਇਹ ਅੱਜ ਸਿੱਧਾ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਵਾਂ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਉਹ ਤਾਂਬਾ ਭਲਵਾਨ ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਤੱਪਣ ਡਿਆ, ਹੁਣ ਤੇ ਫਿਲਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਏ, ਐਵੇਂ ਕਾਲਾ ਪੈਣ ਡਿਆ। ਉਹ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇਹੋ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ, ਹਲੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕਾਲਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਅੱਜ मैं पैसे लेके जाने ने जनाब। ओहो, कितने को पैसे ले लिए आपसे अंकल ने? 50 लाख रुपया। 50 लाख रुपया? आओ जी बाऊ जी, रकम तगड़ी है, कोई तगड़ा ही बंदा गल करे। और मैं किसे तगड़े माड़े नूं नहीं जानदा है। बह जा इत्थे बह। ਓਹੋ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਤੱਪਣ ਡਏ ਹੋ ਤੇ ਆਰਟਿਸਟ ਨੇ। मेरे पैसे दे, नहीं तो मैं सारे आर्टिस्ट तेरे चौक के ले जाने ने इथों। हाय मैं मर गई। मर गया? हाँ हाँ मर गया। पैसे आपके इन्होंने देने, हमें क्यों तंग कर रहे हैं आप? तुसीं सारे रल के इत्थे लोकां नूं लुੱਟਣ डए हो। ਅੱਜ मैं कर ਲੈਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬੰਦੋਬਸਤ। ओ जनाब पहलवान जी, साडा की कसूर है? ए ने प्रोड्यूसर ए फिल्म बनवाण दे ने ते हीरा सुपर हिट होनी फिल्म बना रहे ने। और मैं किसे नूं नहीं जानदा, मैनू 50 लाख रुपया दिता है ते ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈਣਾ। ਓਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਐਵੇਂ ਤੱਪਣ ਡਏ ਹੋ। ਇਹ ਫਿਲਮ ਬਣ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਨੇਮੇ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਇਹ 50 ਲੱਖ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਆ ਜਾਣਾ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ मुबारक 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 मुबारक। 50 करोड़ आ गया। अंसारी साहब, तांबा साहब, 50 करोड़ रुपया आ गया। मुबारक। ਬਹਿ ਜਾ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ 50 ਕਰੋੜ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ 50 ਲੱਖ ਲੈਣਾ ਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। कल ले लेना। ਕੱਲ ਤੇ ਖੜਾਂਗਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਅੱਜ 50 ਲੱਖ ਨਾ ਮਿਲਿਆ। हमें क्यों लेके जा रहे हैं, हम वहाँ क्या करेंगे? ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਮੌਤ ਦੇ ਖੂਹ ਤੇ ਨਚਾਵਾਂਗਾ। ਓਹੋ ਇਹ ਫਿਲਮ ਦੇ ਆਰਟਿਸਟ ਨੇ, ਇਹ ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ ਪੀਸ ਤੇ ਨੱਚਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਤੇ ਪੂਰਾ ਗਾਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਲੈ ਵੀ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ ਮਿੱਠੂ, ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਕੰਮ ਲੱਭ ਗਈ। तांबा साहब इन्हू भी ले चलो, एक गोल मोटरसाइकिल बड़ी अच्छी चलांदा जी। ਸਾਦੀ ਨਹੀਂ ਚਲਵਾਵਾਂਗਾ, ਫਿਰ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਚਲਵਾਵਾਂਗਾ। ਓਹੋ ਤਾਂਬਾ ਸਾਹਿਬ, ਕਿੱਥੇ 10 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੇਲ ਫੜਦੇ ਫਿਰੋਗੇ? ਇਹ ਫਿਲਮ ਲੱਗਣੀ ਹੈ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆ ਆ ਜਾਣਾ। मुबारक मुबारक। ਬਹਿ ਜਾ, ਬਹਿ ਥੱਲੇ, ਬਹਿ ਥੱਲੇ। ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਇੰਜ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਮੌਲਾ ਜੱਟ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਐਵੇਂ ਦਬਕੇ ਨਾ ਮਾਰੋ ਤਾਂਬਾ ਭਲਵਾਨ ਜੀ, ਫਨਕਾਰ ਬੜੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਦਿਲ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। जी 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 ਇਹਨੂੰ ਕੁੱਤਾ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। फिर कुत्ते ने 1122 मंगवाई सी। ਅੱਜ ਮੈਂ ਵੀ 1122 ਹੀ ਮੰਗਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਾਣਾ, ਪਿੱਛੇ ਬੰਨ ਕੇ ਘਸੀਟ ਦਿਆਂ ਖੜਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਵਾਰਡ ਯਾਫਤਾ ਫਨਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਫਿਰ? ਚੁੱਪ। ਕਿਹੜੇ ਅਵਾਰਡ ਲਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਉਹ ਪਰਲੇ ਨੇ ਕੀ ਸੁੰਡੀ ਦਾ ਰੋਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਫਿਲਮ 'ਚ? ਪ੍ਰਵਾਨ ਜੀ, ਮੁਸਤਫਾ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਮੈਂ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੰਜ ਹੀ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਛਾਲ ਮੈਂ ਹੀ ਮਾਰਨਾ। अच्छा, मैंने तो जिस फिल्म में कोरियोग्राफी की है ना, उस फिल्म को अवार्ड मिले हैं। ਮਿੱਠੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਨਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ। लो जी, फैमिली फिल्म की स्टोरी तैयार हो गई है। ਉਹ ਆ ਗਏ ਹੀਰਾ ਸਾਹਿਬ। मुबारक हो, मुबारक। ले भाई, थले भाई, मुबारक हो जी, मुबारक हो। बेटे ਹੀਰਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਆ। इधर बेटे, ये कौन साहब ने बेटे? ਹੀਰਾ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂਬਾ ਹੈ। ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਇਹਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਪਤੀਸਾ ਲਵੋ। ਵੈਸੇ ਬੇਟੇ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ ਤਾਰਫ ਦਾ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। उठ के उठ भाई, ਅੱਛਾ ਜੀ, ਅੱਛਾ उठ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਤਾਂਬਾ ਗਰਮ ਕਿਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਬੇਟਾ ਜੀ ਬੈਠੋ, ਤਸ਼ਰੀਫ ਰੱਖੋ। ਅੱਲਾ ਖੈਰ। दसना मैं
ਬੁਲਾ ਲੈ ਹੋਰ ਜਿਹਨੂੰ ਬੁਲਾਣਾ ਹੀ ਬੁਲਾ ਲੈ। ਇਹ ਹੀਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂਬਾ ਭਲਵਾਨ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਪਾਰਟਨਰ ਹੈ। ਇਹ ਨੇ ਤਾਂਬਾ ਭਲਵਾਨ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। माशाल्लाह इन्हों का तो बड़ा ना है शहर च। क्या कहने पहलवान जी, वाह 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 वाह। पुत्र जी फटाफट चाह लेके आओ, तांबा भलवान आए ने। आए किधरों भाजी, आए किधरों तुसी भलवान जी? ਇਧਰੋਂ नहीं वो तो इधरों ही आते हो जाहिर है, भलवान उड़ के तो नहीं ना आते। ऐसी गल कर रही हैं 50 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਲੈਣ ਆਇਆ। ओहो तुसी गलत जगह ते आ गए हो। ये फिल्म इंडस्ट्री च इत्थे देण आंदे ने, तुसी लैण आ गए हो। ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਹੀ ਲੈਣ ਆਏ ਜੇ। किन्नू दित्ते सा जी? ਇਹਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਫਿਲਮ ਸਾਜ਼ ਹੈ। ओहो ते ले जाओ इनू 50 तो वेख ही जाएगा ये। ਓਹੋ ਹੀਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸੋ ਕਿ ਫਿਲਮ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਲੱਗਣੀ ਹੈ ਤੇ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਇੰਜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਮੁੰਡਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾਲ। ਉਹ ਭਾਈ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਫਿਲਮ ਸਾਜ਼ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਲਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਫਿਲਮ 'ਚ ਪਾਰਟਨਰ ਬਣ ਜਾਓ। 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮ ਲੱਗ ਕੇ ਹਿੱਟ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਔਰ 50 ਕਰੋੜ ਆ ਵੀ ਜਾਏਗਾ। ਮੁਬਾਰਕ ਮੁਬਾਰਕ ਮੁਬਾਰਕ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਇਹਦੀ ਮਗਰ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਇਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਖਰਚ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤਾ ਏ? ਇੱਥੇ ਤੇ ਇਹਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੋਲੇ ਖਵਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਬੱਕਰੇ ਵਰਗੇ ਕਰ ਛੱਡੇ ਨੇ। ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ 1-1 ਰੁਪਇਆ ਬਚਾ ਰਿਹਾ। अस्सलामुअलैकुम। सॉरी मैं लेट हो गई, सो सॉरी। ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਗੁੜੀਆ, ਸਿਰਫ 2.5 ਘੰਟੇ ਤੁਸੀਂ ਲੇਟ ਹੋ। ਹੀਰੋਇਨ ਤੇ ਇੰਨਾ ਮਾਰਜਨ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਸਟੂਡੀਓ ਦੀ ਰੌਣਕ ਹੀ ਹੀਰੋਇਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ये कौन साहब है? ਉਹ ਗੁੜੀਆ ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਅਸਲ ਫਿਲਮ ਸਾਜ਼ ਜੀ। ਇਹ ਉਹ ਸਰਮਾਇਆਦਾਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਫਿਲਮ ਤੇ ਪੈਸਾ ਲਾਣਾ ਏ। अच्छा। ਇਹ ਬੜਾ ਨਾਮਵਰ ਆਦਮੀ ਜੇ, ਤਾਂਬਾ ਪਹਿਲਵਾਨ, ਪੂਰੇ ਲਾਹੌਰ ਚ ਮਸ਼ਹੂਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦੀਆਂ। ओह अच्छा, आपका तो काफी नाम सुना है। ਹਾਂਜੀ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਆਦਮੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਣਾ 2-2.5 ਕਰੋੜ ਤੇ ਫੌਰਨ ਲਾ ਦੇਣੇ ਫਿਲਮ ਤੇ। ਮੁਬਾਰਕ ਮੁਬਾਰਕ ਮੁਬਾਰਕ। ਖੈਰ ਮੁਬਾਰਕ। ਲਓ ਇੰਨੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਐ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਸਰਮਾਇਆ ਹੀ ਫਿਲਮ ਦੀ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਏ। ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ ਜਨਾਬ? ਜਿੰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨੇ ਸਾਰੇ ਲੈ ਆਵੋ, ਸਾਰੇ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਫਿਰ ਬੇਬਾਜ ਏ। ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ ਮੇਰਾ मतलब है। देखो बात ये है कि ये तो स्क्रिप्ट के मुताबिक होता है। राइटर मैं तांबा जी ऐसा सदे है, हैरान हो जाओगे तुसी। अच्छा जी। लाहौर च देखो हुण गल ही वे कि फिल्म जिहड़ी है ना जी वो बन नहीं रही लाहौर च। जी फिल्म चूंकि इंडस्ट्री चली गई है कराची। हाँ जी। इस वास्ते मैं फिर कराचियों एक बड़ा बड़ा राइटर मंगाया है। और तुसी ये जदों दी स्क्रिप्ट सुनोगे जी ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਇਹਨੂੰ। अच्छा जी। ਓਹੋ ਐਸਾ ਲਿਖਾਰੀ ਵਾਹ 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 ਵਾਹ। ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਜੀ? ਹੀਰਾ ਸੁਪਰ ਹਿੱਟ ਜੀ। ਇਹ ਰਾਈਟਰ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਦਮ ਦਾ ਨਾਂ ਜੀ, ਹੀਰਾ ਸੁਪਰ ਹਿੱਟ। ਤੇ ਰਾਈਟਰ ਦਾ ਦੱਸੋ ਨਾ ਜਨਾਬ। ਰਾਈਟਰ ਦਾ ਨਾਂ ਜੀ ਜਨਾਬ ਯਾਸਰ ਗਰੀਬ। ਗਰੀਬ ਗਰੂਬ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਜਿਹਾ ਬੁਲਾਓ ਜਨਾਬ। ਉਹ ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਗਰੀਬ ਦੇ ਕਲਮ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਅਸਲੀ ਡਾਇਲੌਗ ਨਿਕਲਦਾ ਜੀ। जी। हाँ जी, अमीर ने की लिखना है जिन्हें कभी नहर च टूबी नहीं मारी। ये जो तहरीर होती है ये तो डूब के करने वाला काम है। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਹੀਰਾ ਸੁਪਰ। मेरा मतलब है जेड़ा बंदा गुड्डी लुटदियां रक्शे च नहीं वज्जा उन्हें की लिखना है। ਵਾਹ 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 ਕੀ ਬਾਤ। ये काम तो जनाब चोटें खा के करने वाला है। ਵਾਹ ਵਾਹ। अमीर आदमी को क्या आमद होनी है जो सारा दिन एयर कंडीशन में बैठा रहता है। आमद उसे ही होती है जिसने सड़क के किनारे रेड़ी लगाई हो। वाह 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 वाह। जरा ये रेडी वाला ही होता है जिसको रोजाना 700-800 की आमदन होती है। और जिसे आमदन होती है आमद भी उसे ही होती है। क्या कहने जी। कदों आउणगे जी यासर गरीब साहब? माफी चाहता हूँ, आने में जरा देर हो गई। ओ बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, आओ तशरीफ रखो तशरीफ रखो अस्सलाम वालेकुम। तशरीफ रखो जी। खादिम को यासिर गरीब कहते हैं। डोंट वरी ए साडी फिल्म लगनी है तो ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ यासर अमीर हो जाना है। आमीन आमीन आमीन। वाह मुबारक मुबारक मुबारक, अमीर हो गए मुबारक। अच्छा जी, कोई लव स्टोरी लिख रहे हो? हाँ जी, एक ख्याल के साथ घूम तो रहा हूँ, लेकिन हीरा साहब वो खाली मैदे पे आमद नहीं होती। ओ मैं सदके जावा पुत्र जी, चाह दा आर्डर दियो फटाफट।
ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਚਾਹ ਮੰਗਾਓ, ਯਾਸਰ ਗਰੀਬ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ। हाँ मंगाओ मंगाओ, जरूर मंगाओ जी। अपना ਆ ਮੈਂ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਇਧਰ ਲਿਆ ਬੇਟਾ ਜੀ। ਨੋਟ ਵੱਡਾ ਏ, ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਏ। ਇਧਰ ਲਿਆਓ, ਹੁਣੇ ਚਾਹ ਆ ਜਾਂਦੀ ਏ। इधर आओ, अपना गल सुनो, ए नाल कुछ खान पीन लई चाहे बिस्कुट ਮੈਂ वगैरह ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਇਹ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਲਿਖਣਾ ਪੈਣਾ ਏ। ਇਹ ਫੜੋ, ਐਡਵਾਂਸ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਆ ਗਿਆ। ਚਾਹ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹੁਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਚਾਹ, ਹੁਣੇ ਮੰਗਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਹੁਣੇ ਮੰਗਾਨੀ ਆ ਚਾਹ। ਬੇਟਾ ਜੀ ਨਾਲ ਕੀ ਖਾਓਗੇ? ਆਪਣਾ ਅਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਯਾਸਰ ਗਰੀਬ ਕੇ ਅਮੀਰ ਹੋ? ਹੁਣ ਤੇ ਅਮੀਰ ਹੋ ਗਏ ਹੋ। शुरुआत हो गई है। ਜੀ ਜੀ ਦੱਸੋ ਕੀ ਖਾਓਗੇ? ਨਾਲ ਕੀ ਖਾਓਗੇ? ਨਾਲ ਕੀ ਖਾਓਗੇ? ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ। मस्का बन। ਮਸਕਾ ਬੰਦ? हाँ जी, ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? वो बन को फाड़ के उसमें वो मक्खन भर ਉਹ के। ਬੰਦ ਮੱਖਣ। बहुत अच्छे। वो मक्खन का नाम मस्का रख लिया ने। देखो ना कैसे प्यारे अदीब ने, वाह 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 वाह। वो हम कहते हैं ना जी मस्का ना लगाएं या मक्खन ना लगाएं, उन्होंने मक्खन की जगह मस्का इस्तेमाल किया है। बिल्कुल, वो तो बंद को फाड़ रहे थे। मैं सदके जावा, ये स्क्रिप्ट भी बिल्कुल डिफरेंट लिखणगे इंशाल्लाह। हेलो कुबे, कुबे बेटे 1 2 3 4 5 6 7 8 बेटे 8 कप चाह भेजो ते नाल मेरा बेटा केक भेज दियो। हाँ जी जी, और लचीरिया हुंदा है। केक भेजो, केक बिस्कुट भी नाल आओ। बिस्कुट भी दियो जी, बिस्कुट भी दियो गरीब ने। अल्लाह हाफिज बेटे। ये इन्होंने अजीब ही तमाशा लगाया हुआ है। आज इन्होंने एक नया राइटर बुला लिया है। पहली बात तो यह है हीरा साहब कि मैं आपका बहुत बड़ा मद्दाह हूँ। सदके सदके हमारे असातिज़ा क्लास में आप ही का जिक्र करते हैं। मैं सदके जावा, सुन रहे हो तांबा जी, सुन रहे हो? ਇਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮਸ਼ਹੂਰੀਆਂ, ਇਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮਸ਼ਹੂਰੀਆਂ। यानी जिन्हें नहीं भी फिल्म देखी वो भी जिक्र कर रहा है हीरे सुपर हिट दा। जी, इसी हवाले से आपका जिक्र होता था कि इंडस्ट्री में ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने जिंदगी गुजार दी, कोई फिल्म नहीं बनाई। लो लपेट लो जी मशहूरियां, लपेट लो जी मशहूरियां। ओ पुत्र जी फिल्म कित्थों पूरी करिए? सानू फिल्म साज सरमायादार ही माड़ा लभदा है, ढिला लभदा है। की करिए? कित्थे बनाइए फिल्म? की करदे हो पै जनाब? मेरे हुंदियां किन्ने पैसे लगदे ने जी फिल्म दे? आप पहले ये बताइए तांबा साहब कि फिल्म आप किस जॉनरा पे बनाना चाहते हैं? ओ भाई जॉनरा से नहीं, असी सिनेमे लई फिल्म बनानी है। इनको जॉनरे का नहीं पता? ओ पुत्र जी वो तो मैनू भी नहीं पता। ਲਓ ਜੀ, ਇਹ ਤੇ ਹੀਰਾ ਜੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੌਣ ਦੱਸੇਗਾ? बेटा जी ना ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗਰੀਬ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਲਫ਼ਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਅਮੀਰ ਅਮੀਰ ਬੋਲਣ ਦੇ। माफी चाहता हूँ, मैं पूछना चाह रहा था किस टाइप की फिल्म आपने बनानी है, क्योंकि जब टाइप पता चलेगी तो फिर उस फिल्म का बजट, जाहिर सी बात है ना। जाहिर है जी, जाहिर है। हाँ, क्योंकि देखिए अगर आप एक्शन फिल्म बनाते हैं तो कम से कम भी 40 लाख रुपए में, वाह, ठीक है। हॉरर फिल्म बनेगी 50 लाख की अगर जिन आपके अपने हैं। गुड। नहीं चीता है ऐसा टिकुल। हाँ, ये बहुत अच्छा हो गया। चीता है तो फिर पैसे बच गए आपके। वाह। लव स्टोरी बनेगी हीरा साहब 60 लाख रुपए। अच्छा। और जितना मर्जी आप किसी भी फिल्म में गाना डालेंगे तो फी कस गाना आपको 5 लाख रुपए का पड़ेगा। ये हमारी दुकान का ब्रोशर है, सुबह 9 से शाम 8 आप राब्ता कर सकते हैं। एक चीज, इतवार के दिन छुट्टी होती है। बेटा ਅਸੀਂ ਫਿਲਮ ਬਣਵਾਣੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਬੂੰਦੀ ਵਾਲੇ ਲੱਡੂ ਨਹੀਂ ਬਣਵਾਣੇ। ਜੀ ਬਰੋਸ਼ਲ ਤੇ ਬੱਸਾਂ 'ਚ ਵੜਦੇ ਨੇ। ओ काका तू राइटर है या तेरी बर्गर शॉप है? नहीं नहीं नहीं, बर्गर शॉप के ऊपर वाले फ्लोर पे मेरा ऑफिस है। ओ भाई सानू लम्मियां ना सुना, सीधी फिल्म दी स्टोरी दस की है। अरे ये क्या कह रहे हैं ਇਹ 2-3 ਵਾਰੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਵੀ ਗਏ ਜੇ। जनाब? कहानी दरअसल ये है कि एक सल्तनत का बड़ा जालिम बादशाह होता है। वाह 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 वाह। बादशाह का एक बेटा जो कि सल्तनत का शहजादा है। क्या कहने, देखो ना स्टोरी शुरू ही बादशाह तो हुई है। क्या बात, बादशाह तो बादशाह। वाह वाह। बिल्कुल अनदेखी अनसुनी, आज तक आपने ऐसी कहानी नहीं सुनी होगी। क्या कहने? शहजादे को महल में नाचने वाली एक रक्कासा से इश्क हो जाता है। मुबारक 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 मुबारक। बैठो बेटे बैठो, जरा देखो तो सही है कि होने की लगा है। जी जी।
तो शहजादा कहता है कि अब तो मैंने इनसे शादी करनी है और जब मैं बादशाह बनूंगा तो ये रक्कासा सल्तनत की मलिका बनेगी। की मोड़ आया, की मोड़ आया। मुबारक मुबारक। बादशाह कहता है कि मेरे जीते जी ये कभी हो ही नहीं सकता। ओए, यानी देखो बादशाह ही विलन हो गया है और अपने पुत्र का विलन हो गया। वाह। उसके बाद बादशाह हुक्म देता है कि इस रक्कासा को जिंदा दीवारों में चुनवा दिया जाए। ओ मेरे सस्पेंस सस्पेंस। हाय हाय, दीवार में चुनवा दिया, पहली बना सुने हैं। ओए ठहर जाए, पहली दफा सुने हैं। और कोई हया कर मुगले आजम सुनाई जा रहे हैं। अरे ये क्या कह रहे हैं हया कर? ये तीनर जेल च गए जी। कोई नहीं, स्टोरी बदल लेते हैं। कहानी कुछ यूं है सिल्वर भाई। ओ तांबा भाई, तांबा भाई, और क्यों मेरा प्रोड्यूसर सस्ता करन रहे हैं? माफी चाहता हूं तांबा भाई। कहानी यह है कि एक गांव है और गांव का एक चौधरी है। पहली दफा सुना है कि गांव का एक चौधरी है, वरना चौधरी को तो हमेशा हमने सियासत में ही देखा है। अब उसी गांव में एक बदमाश है। बदमाश की और चौधरी की आपस में नहीं बनती, इनका झगड़ा होता है और बदमाश चौधरी के दोनों हाथ पूरे काट देता है। हाय हाय हाय, मैं सदके जावा की सिचुएशन बना देती हूँ। ये सिचुएशन हिट करेगी फिल्म नु। जनाब हीरा साहब, इसके बाद चौधरी जो है शहर से 2 नौजवान तगड़े लड़के बुलाता है हाय, सदके जावा मार्जिन मिल गया 2 हीरोआं दा। और वो 2 हीरो आते हैं, उस बदमाश से लड़ते हैं। इस बीच उन 2 में से एक हीरो बेचारा अनकरीब मारा जाता है। अब एक हीरो बचा है, वाह वाह एक बदमाश बचा है वाह, और एक चौधरी जिसके दोनों हाथ नहीं। क्या बात है गरीब साहब, कैसा चौधरी पाया जे जिदियां दोवें बावां ही नहीं। चौधरी ते भी नहीं कह सकते कि आ भी साडियां ज़मीनां ने ते आ भी साडियां ज़मीनां। वाह जी वाह, आप समझ गए स्टोरी को। और मैं भी समझ गया तेरी स्टोरी नू। शोले फिल्म की कहानी सुनान दे क्या भला जी है। अरे ये क्या कह रहे हैं चबला जी आप? तीनर ही जेल च गए जी। ठीक है, नई स्टोरी सुन लीजिए अपना स्टील साहब। ओ चाचा, स्टील साहब नहीं, तांबा साहब, तांबा साहब। चंगा भला प्रोड्यूसर है, तू ओनू डोल बनाता है। मेरा ख्याल है स्टोरी सुनन तो पहला इनू अपना नाम ना याद करा दिया। एक्सक्यूज मी। स्टोरी कुछ यूं है लोहा भाई। बस स्टोरी कुछ यूं है कि मेरा 50,10,000 दे दियो। मस्जिद के जा। नाज़रीन, इसके साथ ही हम लेते हैं एक ब्रेक। मिलते हैं ब्रेक के बाद। चोर किधरे गलती नाल अपने सौहरियां दे घर वड़ गया सी और घर समान लैके गया ते बीवी ने किधरे कह दिता है हाय 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 हाय, आ ते मेरी अम्मी दे भांडे ने। आ ते ओही कुर्सी है जिहदे ते अब्बा जी बैठ के अखबार पढ़ते हुंदे सन। नाज़रीन, पेश खिदमत है आज का खबरनामा। नायरीन, आज की खबर के मुताबिक पहले न्यूज जैन 0092 एक गाना पेश कर रहा है। वाह। यारो यारो मुझे मुआफ करो, मैं नशे में हूँ। पुलिस 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 पुलिस। हेलो, एक्सक्यूज मी, क्या कर रहे हो यार? नशे की बात कर रहे हो आप? अब भाई ये खबर में गाना फिट हो रहा है। अच्छा अच्छा, हम डर गए थे कि आप नशे में हैं। अल्लाह माफ करे यार गौरी, तुम मुझे इतना गलत लड़का समझते हो। नहीं नहीं नहीं, ना मैं तुम्हें गलत समझता हूँ ना तुम्हें लड़का ही समझता हूँ। यार फिर आज किसे होर को खबर पढ़वा लो। नहीं नहीं नहीं। कोई बात नहीं, हल्की फुल्की नोक झोंक तो होती है, खबरें तो सुनाओ। नोक जोक करो मगर चलो गलत कह लो, लड़का मानो मुझे। नहीं नहीं जेम्स बॉन्ड, आप खबर सुनाओ, आप बड़े हैंडसम लड़के हो। थैंक यू वेरी मच, आप भी माशाल्लाह बहुत ज्यादा हैंडसम हैं। खबर कुछ यूं है, अमेरिका में लाखों रुपए और कीमती सामान चोरी करने वाले चोर ने सब कुछ माफीनामे के साथ वापस कर दिया।
माफीनामे के अंदर चोर ने लिखा कि मैंने जिस वक्त चोरी की तब मैं नशे में था। वैसे बड़ी बात है, चोर का जब नशा उतरा तो उसका जमीर भी जाग गया। वैसे भी जेम्स बॉन्ड अगर सुबह का भूला शाम को वापस आ जाए तो समझो कि उसे कहीं रहने के लिए जगह नहीं मिली। बहुत अच्छे गौरी, चंगी भली अदबी कहावत सी ओदे च भी तू गुरबत पा देती। अच्छा जी, ये वाकया अमरीकी रियासत न्यू जर्सी का है। एक चोर ने नशे की हालत में गिटार शॉप में 2 मैंडोलिन और कुछ और सामान चोरी कर लिए। अच्छा। ये जो छोटे गिटार टैप होते हैं ना, हाँ जी, हाँ जी। उनको मैंडोलिन कहते हैं। जी जी। अच्छा। तो चोर पहले चुपके से ये सामान चोरी करके ले गया, लेकिन जब घर गया है तो उसने को पता नहीं एहसास हुआ है या घर बुढ़ी को सोटियां वजियां या खुद ही अल्लाह ने उसे कोई गलती का एहसास दे दिया। तो उसने माफीनामा लिखा। अच्छा। और उसमें बकायदा उसने मेंशन किया कि मैं नशे में था इसलिए मैंने चोरी की है, मुझे माफ कर दीजिएगा, मैं आपका गिटार वापस कर रहा हूं। अल्लाह तुहानू खुश रखे, जोड़ियां सलामत रहन, भाग लगे रहन, मौला खुश रखे। वाह वाह वाह, अपना ही जी था, अपना ही जी था। यार ये बीच में उसने कहाँ कहा होगा? और भाई जी, ये मैं इसलिए पल्ले से लगा रहा हूं कि जो मैंडोलिन चोरी कर रहा है लाइमन वो को बरीक आर्टिस्ट है। और आपको पता है कि बरीक आर्टिस्ट जो है वो लाइमन कहता है कि अल्लाह ने तेनू बड़ा देना। मतलब ये है कि जब भी अल्लाह पाक किसी पर रहमत करता है तो उसके जहन में गलती का एहसास डाल देता है। ये अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे, अल्लाह पाक का सबसे बड़ा अजाब है कि आप अपनी गलती पे, अपने गुनाह पे अकड़ जाएं और उसे आप सही समझना शुरू कर दें। मैं तो समझता हूँ कि ये जिसने चोरी का सामान वापस किया है, जी जी, इस पे अल्लाह ने रहमत ही कर दी है जो वापस कर गया। बिल्कुल सही। अच्छा, खबर में ये लिखा हुआ था कि जब चोरी शुदा सामान उसने वापस देखा है ना दुकानदार ने पड़ा हुआ बाहर, तो वो इधर उधर दौड़ा है चोर पकड़ने के लिए। अच्छा। लेकिन वो जा चुका था। दुकानदार ने फिर थैला खोल के देखा तो एक माफीनामा भी सी नाल, जिसमें ये सारी तहरीर थी। सही। और पुलिस ने बताया कि ये जो सामान वो चोरी करके लेके गया था उसकी कीमत तकरीबन $8,000 यानी कि को पाकिस्तानी 24 लाख रुपया थी। इसलिए मैं इधर पक्का हो गया हूं कि ये जो 24 लाख रुपया भी वापस छट गया ना, ये लाइमन कोई बरीक आदमी। वाह वाह वाह। अच्छा, ये खबर पढ़ के मेरे येन में आ रहा था कि ये जो कराची में नशई गटरों के ढक्कन उठा लेते हैं, हाँ जी, हाँ जी। काश ये खबर की तरह उनके दिल में भी एहसास पैदा हो जाए और जब उनका नशा लथे तो वो गटर का ढक्कन खत के साथ उधर वापस रख जाएं और उसमें लिख दें कि हम माफी चाहते हैं, हमने नशे में गटर का ढक्कन चोरी किया था। घर जाके नो बड़ा धोता है, ये चो बो नहीं पी जाती, इस वास्ते असी वापस करना। फिर हमें पास से किसी सियाने बंदे ने कहा कि ये गटर के ढक्कन की बो नहीं है, ये तुम्हारे अंदर की बदबू है जो तुम्हारी हरकतों की वजह से तुम्हारे अंदर से आती है। बिल्कुल। जब दफा हो तो जाकर ढक्कन रख के आओ। जिस तरह के हौलनाक वाकयात पेश आते हैं ढक्कन चोरी होने की वजह से, उस पे तो डूब मरना चाहिए तुम लोगों को। बिल्कुल। अच्छा, वैसे गोगे मुझे इस बात से याद आया, जी जी यार जिस दिन तू भुखाओ में ना रोटी खान तो पहले मेरे पैसे वापस कर दे और साथ लिख दो कि मैं खाना खाने के बाद नशे में हो जाता हूँ, अब मेरा नशा उतरा हुआ है, मैं आपके पैसे वापस कर दूं। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं जेम्स बॉन्ड, खाना खाने के बाद मुझे हल्की सी गनूदगी आती है। खाना खाने के बाद नहीं, पहली परात खाने के बाद और फिर तीसरी के बाद तुम टुन्न हो जाते हो। अच्छा, वैसे तो इस तरह के वाकयात जो है ना जी, चोर डाकू सामान वापस कर गए, माफी मांग गए, ये फिल्मी सी कहानी लगती है। मगर ऐसे वाकयात अक्सर पेश आते हैं। आपको याद होगा पाकिस्तान में जी जी बड़ा एक वाकया मशहूर हुआ था। मौलाना अब्दुस्तार ईदी की जो बेगम साहिबा थी, अपना बल्कीस ईदी, हाँ जी, उन्होंने सुनाया था एक प्रोग्राम में। अच्छा। 70 की दहाई में बल्कीस ईदी साहिबा और अब्दुस्तार ईदी साहब एक बच्ची की मैयत को उनके घर
सांगड़ छोड़ने जा रहे थे। अच्छा। जैसे ही एम्बुलेंस सांगड़ के करीब एक सुनसान रास्ते पे पहुंची है, तो डाकुओं ने एम्बुलेंस को रोक लिया। है जी, घोड़ों पे सवार थे, बकायदा पूरे फिल्मी डाकू सन। हाँ जी, जब उन्होंने रोका है और वो जो लड़की की ज़ईफ वालदा एम्बुलेंस से उतरी है और उसने सिंधी जुबान में डाकुओं को बताया कि एम्बुलेंस चलाने वाला कोई और शख्स नहीं बल्कि मौलाना अब्दुस्तार ईदी साहब हैं। तो ये सुनते ही जो डाकू थे ना जी, वो घोड़ियों से नीचे उतरे और ईदी साहब को सर से पांव तक देखते रहे और अचानक हाथ जोड़ के बोले कि हजूर साडे कोल गलती हो गई है, साडा दिल गलती कर बैठा, हमें माफ कर दे। और इसमें सबसे दिलचस्प बात यह है कि डाकुओं ने साथ ये कहा, मौलाना हम इसलिए माफी मांग रहे हैं आपसे कि आप वो शख्सियत हैं कि अगर हम कहीं पुलिस मुकाबले में मारे गए तो हमारे तो घर वाले हमारी लाशें लेने भी नहीं आएंगे, ये फिर तुसा ही साडे ते मिट्टी पानी। अच्छा, ये कह के डाकुओं ने ईदी साहब का हाथ भी चूमा। अच्छा। और साथ पिछले लुटे पैसियां चो 100 रुपया कट के उन्होंने फंड भी दिता। ये वाकया बल्कीस ईदी साहिबा ने खुद सुनाया था। अच्छा। और वो इसकी चशमदीद गवाह थी चूंकि वो साथ थी। अच्छा, वैसे तो कराची के डाकुओं ने अपने इस डाकू भाई का नाम 2014 में डबो भी दिया था, जब ईदी साहब के दफ्तर और घर से को मेरा ख्याल है करोड़ से भी ज्यादा रुपये लूट लिए गए थे। अच्छा, इसी तरह का एक वाकया टोबा टेक सिंह में भी पेश आया था। अच्छा। वहां पे कुछ जो डकैत थे, चोर थे, वो सामान चोरी करके ले गए और अगली रात ही चुराया हुआ सोना एक मुख्तसर माफीनामे के साथ रख गए। अच्छा जी। कि वो किसी और के घर में चोरी करने जा रहे थे, गलती से इस घर में चोरी हो गई है और हमें पता चला है कि आपने अपनी बच्ची के जहेज के लिए ये सोना इकट्ठा किया हुआ था, उसका येवर बनाया हुआ था, हम बड़ी माफी चाहते हैं। यानी इससे ज्यादा असूल पसंद चोर और कौन हो सकता है? सही बात है। वैसे मैं तुम्हें इजाजत देता हूँ थैले, अगर इन असूलों पे काम करना है तो बन जाओ चोर। यार क्या फजूल बात कर रहे हो, मेरे तो अपने घर में चोरी हो गई थी। जी, थैले बेचारे के घर में चोरी हो गई थी, सारा सामान ले गए थे और अगले दिन सामान वापस नहीं रखा, सिर्फ खत रख के गए कि यार घर में कोई महंगी चीज भी रख लिया करो। यार शाहज़ब वेरी बैड, तेरा की ख्याल है? सारे बेचारे बोरी तो बैठे होंगे ने, मैंने खुद विजिट किया हुआ है थैले के घर में। अच्छा, इसी तरह का एक वाकया मैया साहब भारत में भी पेश आया था। एक चोर घर से पैसे चोरी करके ले गया 2.5 लाख रुपया। अच्छा। पैसे तो वो ले गया मगर रुका उसी वक्त उधर रख गया कि आपके घर से 2.5 लाख रुपया चोरी करके लेके जा रहा हूँ, जल्द वापस कर दूं। वाह जी वाह। यानी उसने ये साबित किया है कि मैं चोरी नहीं कर रहा, मैं जबरदस्ती कर्जे हंसना ले रहा हूँ। अगला वाकया तो आप सुन के उंगलियां दांतों में ले लेंगे। अच्छा। कराची में ही एक मकान से 60 लाख रुपए का सामान चोरी करके लपेट के ले गए चोर। अच्छा। और आप मानेंगे कि 2 दिन बाद वो सारा सामान वापस छोड़ गए थे। हाँ जी, उन्हें रुका नहीं सी नाल छड़िया। अब मेरे जेन में ये फंसा हुआ है कि वो लेके ही क्यों गए अगर दूजे दिन वापस छड़ के जाना सी। बिल्कुल। या तो चोर किधरे गलती नाल अपने सौहरियां दे घर वड़ गया सी और घर सामान लेके गया तो बीवी ने किधरे कह दिता है हाय 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 हाय, आ तो मेरी अम्मी दे भांडे ने, आ ते ओही कुर्सी है जिहदे ते अब्बा जी बैठ के अखबार पढ़ते होंदे सन। तो या फिर चोर को उन डाकुओं की तरह कुछ एहसास हुआ जिन्होंने अब्दुस्तार ईदी साहब को लूटा था। ये जिसके घर से वो सामान लेके गया वो भी बेचारा कोई डाढ़ा शरीफ आदमी था। बिल्कुल। इससे मुझे याद आया एक मैंने जो वाकया खुद सुना हुआ है। जी जी सर। क्या कमाल, मौलाना जमशेद रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े आलम हुए हैं, बहुत बड़े आलम। ये तबलीगी जमात के अंदर ना जी वो चीफ आलम थे, वफात पा गए हुए हैं। कमाल कमाल वली अल्लाह शख्सियत। उनके घर ना जी भैंस चोरी हो गई। अच्छा। वो इधर रायवेंड में ही तशरीफ फरमा थे कि उनके घर वालों ने बताया कि घर में चोरी हो गई है,
चोर भैंस चोरी करके ले गया है। अच्छा। वो खैर घर वालों की परेशानी की वजह से गए वापस। वो बड़ी दूर उनकी रिहाइश थी, टंडूवाला यार की तरफ। अच्छा। जब वहां पे पहुंचे तो घर वालों ने बताया जी कि कोई चोर आया है और वो भैंस चोरी करके ले गया है। हाँ। तो बातों बातों में ना जी पता चला कि वो चोर जो था उसकी जो जूती थी पाँव में पहनी हुई, वो जहाँ भैंस बांधी होती है वहां गारा शारा बन जाता है ना जी। जी जी। तो वो कहीं उसकी जूती एक ना पाँव उस गारे में फंस गया, तो वो उधर जूती छोड़ के ना जी एक पैर तो भैंस लेके चला गया। अच्छा। अंधेरा था उस वक्त, उसको नहीं पता चला कि किधर है जूती। हाँ जी, हाँ जी। या वो जल्दी में होगा तो ले गया फटाफट। तो जूती जो छोड़ गया था चोर, वो एक पांव उठा के पूरे गांव के दरवाजे खटखटाते रहे कि ये किसी की जूती हमारे घर में रह गई है, ये वापस ले लें। नाज़रीन, इसके साथ ही हम लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप बताएं जी, मैं गलत कह रही हूँ? बीवी जो भी कह रही हो, बेशक आपको ना भी सुनाई दे तो वो ठीक कह रही होती। किदे कोलों फैसला करा लगे हो? अजीजी ते आप खज्जल खराब खावंदे। अच्छा जी, मियाँ बीवी में झगड़ा जब भी हो तो बाद में जाकर पता ये चलता है कि असल मसला ससुराल और मैके का था। इसी तरह हमारे साथ आज एक ऐसे मियाँ बीवी मौजूद हैं, आइए उनसे उनकी बात सुनते हैं। बात करने का ही तो टाइम नहीं है इनके पास, ना बात करने का ना बात सुनने का, लेकिन अपने फजूल दोस्तों और रिश्तेदारों से गप्पे लगाने का बहुत टाइम है। ओहो, ये तो बहुत बुरी बात है। और भाई अगर बीवी की बात नहीं सुननी थी तो फिर शादी क्यों की? आपको मालूम है कि लड़की शादी क्यों करती है? सिर्फ इसलिए कि उसे अपनी बातें सुनाने के लिए एक बेवकूफ बंदा चाहिए होता है। बेवकूफ तो लग रहे हैं, लेकिन बातें पता नहीं क्यों नहीं सुनते। तो क्या सब कुछ छोड़ के घर बैठ जाऊं इसकी बातें सुनने के लिए? ओ भाई, स्नेक वक्त ने भी तो किसी से बात करनी होती है, तो शौहर से अच्छा लिसनर और कौन हो सकता है? अरे बात कोई करने वाली हो तो बंदा सुने ना। शिकायतें, ताने, चुगलियां, आखिर ये सब एक बंदा कितनी देर सुन सकता है? भाई ये लाइफ टाइम पैकेज होता है, बाकी आप खुद फैसला कर लें। अच्छा, मेरी बातें तुम्हें ताने और शिकायतें लगती हैं, मैं तो हकीकत बयान करती हूँ, फिर चाहे तुम्हें जो भी लगे। नहीं, वैसे कौन सी ऐसी बात ये कर देती हैं, कौन सी ऐसी शिकायत करती हैं जिस पे आप चिढ़ जाते हैं जनाब? सर, आप माशाल्लाह खुद बुजुर्ग आदमी हैं, आप बात को समझ रहे हैं। एक्सक्यूज मी, आप ये लड़की बुजुर्ग हटा के तो दानिश्वर लगाए यहाँ। यही तो मेरी बात सबको बुरी लगती है, मुझे तो जो शक्ल से नजर आता है मैं कह देती हूँ। यानी आप शक्ल से नक्शा बनाना शुरू कर देती हैं। इस तरह आप गौरी साहब को क्या कहेंगी कि आप खुद अच्छे भले लगड़बगे हैं? यार तुम मेरी क्यों बाद में बीच में कर रहे हो? तुम अपनी भुगतो। आप मुझे बताएं, अगर मैं इसे कहती हूँ कि मुझे आउटिंग पे लेके जाए तो ये शिकायत है? ये शिकायत नहीं, ये खर्चा है। सुन रहे हैं, मुझे आउटिंग पे लेके जाना खर्चा है और अपने दोस्तों के साथ पार्टी करना वो खर्चा नहीं है। मुझे अम्मी के घर लेके जाने के लिए छुट्टी नहीं मिलती, लेकिन अपने बहनोई को एयरपोर्ट छोड़ने जाने के लिए छुट्टी मिल जाती है। आप बताएं जी, मैं गलत कह रही हूँ? देखिए जी, अगर तो आप मुझसे पूछ रहे हैं तो मेरा तो सीधा सीधा ये ईमान है कि बीवी जो भी कह रही हो, बेशक आपको ना भी सुनाई दे तो वो ठीक कह रही होती। किदे कोलों फैसला करा लगे हो? अजीजी ते आप खज्जल खराब खावंदे। यार मेरे कहने का मतलब ये है कि मियाँ का और बीवी का अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू होता है। हाँ जी। बीवी अपने हिसाब से सोचती है। यार सोचने की बात तो दूर, ये तो करती ही अपनी मर्जी है। इसे हर उस बात से एतराज है जो मैं अपनी मर्जी से करता हूँ। अपनी मर्जी? तुम मुझे डिक्टेटर कह रहे हो? बताओ हाँ जरा, मैंने ऐसी कौन सी तुम्हारे सर पे बंदूक तानी हुई है? बंदूक? पुलिस पुलिस पुलिस! ओ भाई, ये जो मुंह फुला के बैठी रहती है ना, किसी बंदूक से कम नहीं है। इंतहाई मुंह फट औरत है, कुछ पता नहीं होता कब इसके मुंह से क्या निकलेगा। भाई यकीन करें, आए गए का भी लिहाज नहीं करती। ओ मर गए था भाई, ये तो इन्हें सीधा डोइयां खाने वाली गल कर देती जी।
अली मुमताज साहब, आपको चाहिए था कि इनको पहले बताते कि ये शो है और शो का एक डेकोरम होता है। जेडी गुफ्तगू कर रहे हैं हुणे डोइयां चल जानियां जी। भाई मुझे तो इन मामलात से दूर ही रखो, इन्हीं की सुन लो। यही तो इसे दुख है कि मैं डोई नहीं पकड़ती। हर वो बंदा जो इसका खालू, चचा, ताया, फुफड़, हर बंदे को घर उठाकर ले आता है और मुझ पे हुक्म चलाता रहता है कि इनको खाने खिलाओ। हर बंदा मुफ्त खाने आ जाता है और फायदा 0/0। यार तुम घर में बीवी लेके आए हो या खानसामा लेके आए हो जो रिश्तेदारों को मुफ्त खाने खिलाते रहते हो? मुफ्त क्या मतलब? तुम रिश्तेदारों को खाना खिला के उनसे पैसे लेते हो? यार मेरे रिश्तेदार तो खाना खा के इतनी दुआएं देते हैं मुझे, इतनी दुआएं देते हैं। तुम्हें कभी तुम्हारे रिश्तेदार ने कहा है अल्लाह ने तुम्हें बड़ा देना है? तो भाई रिश्तों में फायदा नुकसान नहीं देखा जाता, रिश्ता देखा जाता है। ये तो हर चीज में फायदा ढूंढती रहती है। यही बात है जी। आप फुफड़ को खाना खिला के बंदा ये तो नहीं कह सकता कि आपकी तरफ 1750 हो गए हैं। अजय फुफड़ ने 1750 दे दिए तो फुफड़ घर चला जाएगा तो फूफी बरताडे वाला आ जाएगी। यार शाहजब, आपने ये जो 1750 रुपए बिल बताया है, मेरा ख्याल आपके घर मटन नहीं चिकन पका है। मुझे तो लगता है सब्जी पकी हुई है, साथ इसने रायते का बिल भी डाला है। ओ भाई इनको छोड़ो, फायदा इसी में है कि बीवी की बात मान लिया करो। नहीं भाई साहब, ये बीवी टोटल खसारा ही खसारा है। हाय मैं मर गई, मुझे खसारा कह रहे हो? मैं अपने और तुम्हारे मुस्तकबिल के लिए ये सब कर रही होती हूँ और तुम मुझे खसारा कह रहे हो? अगर रिश्तेदारों में फंसे रहेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे? आगे बढ़ने का मतलब ये नहीं कि पीछे वालों को लात मार दें। ये पीछे वालों को लात तो फिर खोते की तरह मारोगे। जिस तरह तुम लात मार रहे हो इस तरह तो गाड़ी की रेस पे लात मारते हैं। मुझे लगता है घर से आप भी काफी दुखी हैं। बहुत दुखी जी, इन्हों की छाती चौंदी। इसका जो भी रिश्तेदार हमारे घर आता है, जितनी देर बैठता है मुंह सुजा के ही बैठा रहता है। और इसे सिर्फ खुशामद करने वाले लोग पसंद है। ऐसे लोग घर आए जो इन्हें देख के बोले, ओ माय गॉड योर हाउस इज सो क्लासी। और तुम्हें तो वो लोग पसंद है जो घर आते ही कहे, बीवी कहाँ है, तुम्हारे काबू में नहीं है। ये तो फिर वाकई भाई जी आपके रिश्तेदार ठीक नहीं है जो आगे पुट्ठे सवाल करते हैं बीवी आपके काबू में नहीं है। सीधा कहना चाहिए आप बीवी के काबू में नहीं है। ये बड़ी तेज चीज है, ये नहीं आता किसी के काबू में। ये देख रहे हैं आप, ये इसकी वजह से मेरे दोस्तों ने मुझसे मिलना छोड़ दिया है। कहते हैं यार तुझसे मिलने आते हैं, तेरी बीवी हमें ऐसे देखती जैसे हम मिलने नहीं बल्कि कर्ज मांगने आए हैं। वही दोस्त ना जो आके कहते हैं कि 5 मिनट बात करनी है और पूरा एक दौरे हुकूमत गुजार के जाते हैं। चलो कोई गल नहीं, एक दौरे हुकूमत 2-2.5 साल का ही होता है। भाई आप भी थोड़ा सा लिहाज कर लिया करो। इस रवैये की वजह से मेरे रिश्तेदारों ने मुझसे मिलना छोड़ दिया है। अभी कुछ दिन पहले मेरी फुप्पो आई, इसका रवैया देखा, यकीन करें सलाम दुआ की और चलती बनी। अच्छा वो सलाम दुआ थी, आते ही कहने लगी, अरे बहू तुम्हारे तो सोफे बैठ गए हैं, पॉलिश भी उतर गई है, ऊपर से कहती हैं तुम्हारे घर वालों ने जहेज देकर तो खाना पूरी की है। फुप्पो ने सिर्फ पहली वाली बात की थी, दूसरी इसने खुद जोड़ी है। नहीं तो आपने कह देना था कि पुप्पो जी अगर आपको सामान की इतनी तकलीफ है तो आप नया बनवा दें। यही कहा इसने। ओ इसका मतलब आप भी इससे गुजर चुके हैं। और नहीं भाई जी, मैंने मिसाल के तौर पे कहा है। असीसी यार तेनों हमेशा मिसाल पुट्ठी पै जाती एक मैनू मिसाल पुट्ठी पैंदी है कि मैं अपनी गली च बड़ा ही तो मैनू कुत्ता पै जाता। इसके इस रवैये की वजह से मेरी फुप्पो ने जाके खानदान में ऐलान कर दिया है कि आसिफ की बीवी बहुत बदतमीज है। इसे बदतमीजी नहीं कहते, इसे हदबंदी कहते हैं और उन्हें भी बोलने से पहले सोचना चाहिए। क्या क्या कौन सोचेगा कितना होगा भाई। अभी खाला मिलने आई थी, तुमने अपनी जबान से मेरी खाला को भी रगड़ के रख दिया। वो इसलिए कि सारा दिन गुजारने के बाद कहती हैं मैं तो आप लोगों से खड़े खड़े मिलने आई थी। गलत गलत, बिल्कुल गलत बात है। खाला ने सिर्फ ये कहा था कि बहू इतनी खामोश क्यों रहती हो, और तुमने उन्हें शर्मिंदा कर दिया। मैंने उनसे सिर्फ ये कहा था कि मैं खामोश नहीं रहती, बस फजूल गुफ्तगू से परहेज करती हूँ। तुम खुद बताओ इसमें शर्मिंदा करने वाली कौन सी बात है? ये बात भी मैं बताऊं, मुझे ही बताना पड़ेगा। आप यकीन करें
कि इनकी वजह से मेरे ननियाल और ददियाल में मेरी इज्जत 2 टके की हो गई है। और चलो यार, तुमने कौन सा उनको बताया हुआ है कि मैं एटॉमिक एनर्जी में इंजीनियर लगा हुआ बीवी की वजह से अगर बंदा हल्का फुल्का यलील हो रहा होता है तो वो यलील नहीं हो रहा होता, मैनेज हो रहा होता है। वाह 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 अजीजी, क्या हड्ड बीतियां बताते हो यार। यार इन्हों तो परे पाओ है। अजीजी, इस पूरे शो में मैं और आप ही डिसेंट हैं। लो, यानी मैनू दाद दे के नाल मेरा भी बेड़ा गर्क कर लिया। सिर्फ गोगे तुम्हें अगर कोई खाना खाते हुए देख लेना तो उसके ये में आएगा कि यार ये भी इंजिदा ही डिसेंट है। ऐसे मैं आप दोनों की लड़ाई की वजह को समझ गया हूं। जितनी देर तक तो आप दाएं बाएं दोस्तों रिश्तेदारों की तरफ देखेंगे ना, आपकी लड़ाई खत्म नहीं होनी। सिर्फ आप बीवी को देखें और बीवी आपको देखे, खत्म बात। मेरी अपनी जिंदगी का यही असूल है, मैं बीवी को देखता हूँ, बीवी मुझे देखती है। That's it, बस खत्म, फिनिश। वाह 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 वाह। तुझे तो किस्मत अच्छी के परजाई हमारी अच्छी मिल गई, वरना गौरी तेनू किन्ने वेखना। यार मैं सोया भी होता हूँ और मेरी बीवी जाग रही होती है और मुझे देख रही होती है। वो तो बेचारी डर के जाग रही होती है कि किधरे पासा परत के कोई बच्चा ना थले दे दे। नाज़रीन, इसके साथ ही हम लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मैं आप सबसे छोटा हूँ जी जी, उम्र चो भी तो तोल के भी। यार, मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे भी याद है कि मैंने अपने होश में 200 रुपए किलो गोश्त खरीदा है। चलो आज ये कोई ले लो यार, मुजफ्फर 2 किलो मैंने तोल दे यार। यार हम लोग ना अक्सर ये गुफ्तगू सुनते हैं बुजुर्गों के मुंह से, जी जी, कहीं से गुजरते हुए। ये मैंने एक दफा पहले भी कहा था कि अक्सर दादा या नाना ना पोते के साथ मोटरसाइकिल के पीछे बैठे हुए जा रहा हो ना, तो ये कह रहा होता है कि ऐ सारा खाली हुंदा सी, ऐ सारा खाली हुंदा सी। बिल्कुल इर्द गिर्द इशारे कर करके आबादी में भरी हुई सोसाइटियों में बता रहा होता है कि सारा खाली हुंदा सी। और वाकई बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जी जी जी, जिनको हम भी सोचते हैं कि यार यहाँ तो खेतें होती थी, फसलें होती थी, बिल्कुल ये तो सारा खाली था। जी, किस तरह बदल गया और कितनी गुंजान आबादी। इवन ये अक्सर हमारे फिल्म स्टूडियो के लोग बताते हैं कि ये जो इकबाल टाउन है सोसाइटी, जो इस वक्त बिल्कुल ही शहर का सेंटर बन गई हुई है, वो बताती है कि ये सारी फसलें होती थी। अच्छा, इधर गाने रिकॉर्ड होते थे, फिल्मों के फाइटें रिकॉर्ड होती थी। हाँ, बड़ा एक्सपोज हुआ, वो डाकू भागे जा रहे हैं ओए घोड़ों पे। और देखे ना, आपको लगता है कि उत्थे कोई फसला होंदियां होंगी। इस तरह और बहुत सी सोसाइटियां अब हमारे सामने, तो खैर ये कई बनी हैं, जी जी जी, बेशुमार सोसाइटियां। ये डीएच जो है इस जगह बना है, मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है कि खालिद अब्बास डार साहब, हमारे लेजेंड बब्बर शेर बाबा जी, हाँ जी, वो एक दफा हम रिकॉर्डिंग कर रहे थे 2 नंबर हॉल में अलहमरा के। अच्छा, तो वो आगे कहते हैं, लो जी बहुत अच्छी सोसाइटी बनी है डीएच, जल्दी जल्दी उधर प्लाट ले लो, हाँ, वरना फिर ना कहना कि बाबे ने दसिया नहीं सी। अच्छा, और उन्होंने बताया कि मैंने प्लाट लिया है इधर 2 कनाल का माशाल्लाह। अच्छा, और किसी ने पूछा जी कितने का लिया है, तो कहते हैं 5 लाख रुपए। अब मैं सोचता हूं कि ये तो कल की बात है, 2 कनाल का प्लाट 5 लाख रुपए। ओ हो, बिल्कुल सर, किस कदर तेजी से ये सफर तय हो, चेंज हुआ बहुत ज्यादा। हाँ, बहुत ज्यादा जी। मैं हैरान हो जाता हूँ जब किसी के मुंह से सुनता हूँ ना जी 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 जी, कि भाजी गोश्त जेड़ा 2 आने का किलो हुंदा सी। जी सर, 2 आने का किलो तो हुण बिल्ली नूं पाण वास्ते नहीं देंदे। हाय, मेरी शादी हुई थी तो 2000 रुपए तोला सोना था। लो देखो ना जरा, हाँ, इन्हें कराई जल्दी तां सी कि सोना सस्ता है, फटाफट करा लवा। आजकल महंगाई का ताल्लुक डॉलर और तनख्वाह के साथ किया जाता है, जी फिर खुराक या पेट्रोल के साथ। बिल्कुल, लेकिन एक दौर में सोने के साथ महंगाई का ताल्लुक देखा जाता था। जी, वाह वाह, खवातीन की गुफ्तगू में सब्जियों के रेट के अलावा सोने के रेट की बात हुआ करती थी। जी, इसीलिए हमने बुजुर्गों से सुना हुआ है ना जी कि फलां दौर में तो सोना इतना सस्ता होता था
या इतने का तोला होता था, हाँ जी। या जैसे ये थैला बता रहा हाँ है, जी सर। मेरे जहन में यही चीजें आ रही थी, तो मैंने एक रिसर्च करवाई है। हमारे जो रिसर्चर हैं नूरुल अमीन साहब, यार आप खुद क्यों नहीं रिसर्च करते? आपके पास कुछ थोड़ा एक्सपीरियंस है यार। यार वो इतना समझदार दानिशवर बंदा है, तुम्हें वैसे ही वो चलता फिरता लगता है कि जैसे रेगिस्तान में ऊंट गुआचिया हुआ है। वो इंग्लिश का टीचर है, इंग्लिश का एमए इंग्लिश उसने किया हुआ है। देखो ना जरा, मुंह ओदा लैन वाले खरबूजे रखा है। और माशाल्लाह देखें कि मास्टर डिग्री इंग्लिश में है। उसने जो रिसर्च की है वो तो जरा सुनो। आज जो सोना 4,57,000 रुपए तोला मिल रहा है, ये 1947 में, अब चले जाते हैं ना जी पाकिस्तान शुरू जब स्टार्ट से 1947 में ये 4,57,000 रुपए तोला सोना जो था, ये सिर्फ 57 रुपए तोला था। वाह। अब 4,57,000 रुपए, उस वक्त सिर्फ 57 रुपए। हाँ जी। और 1960 के बाद तक 100 रुपए के आसपास था। जी वाह जी वाह। अजीजी जो मैं अपनी शादी की बता रहा हूँ, ये 86 की बात है जब 2,000 रुपए तोला था सोना। बिल्कुल 86 की होगी, चूंकि हमारे रिसर्चर नूरुल अमीन साहब ने बताया है जी जी। कि 1979 हाँ जी 89। 79 में जो सोना है ना जी, वो 1,000 रुपए तोला हो गया था। अच्छा। लेकिन उस वक्त से अब तक इसकी कीमत को अब ब्रेक नहीं लग रही। हाँ जी। 1999 तक, यानी 1999 तक ये 6,150 रुपए तोला हो चुका था। अच्छा। फिर 2009 में ये 29,500 रुपए तोला हुआ। सही। फिर 2019 में 70,000 रुपए तोला, हाँ जी। और अब ओए ओए ओए। 4,57,000 रुपए तोला। तौबा। अच्छा, कहा यह जाता है ना जी कि पैसे की वैल्यू कम हो गई है, डॉलर ऊपर चला गया है, चलो तनख्वाहें बढ़ गई हैं, तनख्वाहें भी तो बढ़ी हैं ना। जी जी जी। लेकिन ये आपको बताऊं कि 1947 में पाकिस्तान के मजदूर की तनख्वाह 30 रुपए महाना के करीब थी। महीने के 30 रुपए लेता था मजदूर। बहुत थे उस वक्त है। हाँ जी, उस वक्त बड़ी रकम थी। यानी 1947 में अगर 57 रुपए तोला था सोना, हाँ जी। तो महाना तनख्वाह अगर 30 रुपए थी मजदूर की, तो 2 महीने की तनख्वाह में वो तोला सोना ले लेता था। बिल्कुल सही। लेकिन आज मजदूर की तनख्वाह सरकारी खाते में 40,000 रुपए महीना है। हाँ जी सर। ठीक है जी। हाँ जी। अब वो बेचारा 10 तनख्वाहें भी इकट्ठी करे तो 1 तोला सोना नहीं मिलता। बिल्कुल सही। इससे आप अंदाजा लगाएं कि 1947 में 2 तनख्वाहों से तोला मिल जाता था। जी जी जी। अब मजदूर की 10 तनख्वाहों में भी 1 तोला नहीं सोना नहीं मिलता। होगा। हाँ जी। यानी सरकारी खातों से बाहर मजदूर आज भी बेचारा 25-30 हजार रुपए पे रुल रहा है, खजल हो रहा है। अच्छा, अब जरा डॉलर की कहानी भी सुन लें। जी सर। आज जो डॉलर 300 रुपए को हाथ लगा रहा है, 1947 में सिर्फ 3 रुपए 31 पैसे का होता था। अच्छा। यस, 3 रुपए 31 पैसे। वाह। फिर 1971 तक डॉलर की कीमत सिर्फ 4 रुपए 76 पैसे थी। अच्छा। फिर 1981 तक डॉलर की कीमत 9 रुपए 99 पैसे थी। अच्छा। फिर 1999 में 89 में जी जी। डॉलर जो था वो 20 रुपए 54 पैसे का था। फिर 1999 यानी 1999 तक डॉलर 51 रुपए 90 पैसे का था। वाह। फिर 2009 तक डॉलर की वैल्यू 84 रुपए 10 पैसे थी। अच्छा सही। फिर 2016 में ये 104 रुपए तक पहुंचा। जी 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 जी। मगर जब डॉलर जो ही 3 फिगर में पहुंचा है, ओए ओए। उसके बाद पकड़ा ही नहीं दिया और आज 280 रुपए से भी ऊपर निकल गया। इस हिसाब से देखा जाए तो पाकिस्तान की करेंसी बहुत ज्यादा डीवैल्यू हुई है और सिवाय सोने और डॉलर के किसी चीज ने तरक्की नहीं की। हाँ जी। यार अजीजी, मेरे मामू दसदे ने कि मेरी तनख्वाह 1 महीने ਦੀ 12 ਡਾਲਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। बहुत अच्छे। ਤੁਹਾਡੇ ਚੱਕ 12 ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਲਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਜੀ? ਜਾਂ ਮਾਮੂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੇ ਪੈਸੇ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਸਨ? यार ये बात नहीं है, मेरे मामू अमेरिका होते थे। अजीजी, मुझे याद है मैं छोटा सा था तो मेरे वालिद साहब ने 5 मरले का प्लाट 1600 का लिया था। लाजमन सर्दियों में खरीदा होगा, सर्दियों में प्लाट छोटा हो जाता है।
यार 1600 का प्लाट शाहजब, वो तो बहुत महंगा खरीदा आपके अबू ने हैं? उस दौर में तो सुना कि किलो दाल खरीदो तो दुकानदार चुंगे में 7 प्लाट दे देता था। अजीजी साहब, मैं अपनी होश में 9 रुपए किलो बकरे का गोश्त लेके आया हूँ। यार तुमने अपनी होश में सिर्फ खाने पीने की चीजें याद रखी हुई है। ये नहीं तुम कह सकते कि मैंने अपनी होश में इतने का मोटरसाइकिल खरीदा था, या मैं अपनी होश में स्कूले इतनी फीस देता था। तेनू सिर्फ गोश्त याद है और कुछ नहीं याद। नहीं, मेरे अब्बू ने मुझे 10 रुपए दिए थे। उसने कहा ये 9 रुपए का गोश्त ले, बकरे का 1 रुपए की आप कोई चीज खा लेना। यार वैसे मैं आप सबसे छोटा हूँ। जी जी, उम्र चो भी तो तोल के भी। यार मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे भी याद है कि मैंने अपने होश में 200 रुपए किलो गोश्त खरीदा है। चलो आज ये कोई ले लो यार, मुजफ्फर 2 किलो मैंने तोल दे यार। यार उसने उस वक्त खरीदा था जब वो छोटा था। वैसे तो आप भी छोटा ही है, और उसे गुस्सा भी ये है कि मैं नहीं वधिया, गोश्त का रेट बढ़ गया। नाज़रीन, इसके साथ ही आज के प्रोग्राम हस्बे हाल का वक्त खत्म हुआ चाहता है। अपने मेज़बान अली मुमताज़ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।